morning everyone, this is English tutor Deepak Sharma. In this video I'm going to tell you importance of rules and regulations, importance of discipline. So I just requested for a feedback. There are some people who will give you the negative feedback also, and they will suggest some corrections. So I appreciate the correction. So that guy told me that sir, everything is good, but I don't like your policies and your kind of rules and regulations you impose upon us. I don't like that. So उस स्टूडेंट का कहना था कि सर आपका सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप, एवरीथिंग इज फाइन, बट जो आप रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट आपकी पॉलिसीज है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट आपके रूल्स और रेगुलेशंस है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आप एक्सपेक्ट करते हो, किसी स्टूडेंट की प्रॉब्लम को आप समझते ही नहीं हो, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है. दिस वॉज हीज फीडबैक. सो लेट मी टेल यू गाइज व्हाट मेक्स मी impose those rules and restrictions. मेरे को ये rules और restrictions impose करने के लिए मजबूर करने वाली चीजें कौन सी है, I want to tell you. So the first thing is I believe that if you suffer the pain of discipline, you will not have to bear the pain of regret. It's always better to suffer the pain of discipline rather than suffering the pain of regret. अगर आप अभी डिसिप्लिन में रहते हो तो कल आपको अफसोस नहीं करना होगा, कल आपको अफसोस नहीं करना होगा. और अगर अभी आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हो, डिसिप्लिन थोड़ा तकलीफ दे होता है. डिसिप्लिन वो होता है जब आपको कुछ चीजें करनी होती है, चाहे आपकी इच्छा हो चाहे नहीं हो, क्योंकि वो चीज जरूरी है, वो काम आपको करना पड़ेगा चाहे आपकी इच्छा हो या नहीं हो. फॉर एग्जाम्पल कि रोज सुबह आपको जल्दी उठ करके एक्सरसाइज करना डिसिप्लिन है, और कई बार आपको उठने की इच्छा नहीं होगी, आपको एक्सरसाइज करने का मन नहीं करेगा, बट फिर भी अगर आप करते हो, उसको हम कहते हैं डिसिप्लिन. और अगर आप डिसिप्लिन से रहोगे, अगर आप डिसिप्लिन को, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करोगे, अपने लिए आप नियम बनाओगे और उन नियमों के आधार पे आप चलोगे, हर काम अपना उन नियम, रूल्स रेगुलेशंस और पॉलिसीज के आधार पे आप करोगे, तो इन फ्यूचर आप हेल्दी रहोगे, आप हैप्पी, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी हेल्दी, you will be more successful. Discipline is the thing that differentiates between the winners and the losers. You will always find winners are disciplined. मुझे एक ऐसा इंसान बता दीजिए जो बहुत कामयाब है और बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है. जब मर्जी आए तब उठता है, जब मर्जी आए तब खाता है, जब मर्जी आए तब पीता है, जब मर्जी आए तब कोई भी काम करता है. ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा आज तक कामयाब होते हुए. So if you want to become successful, you need to have a set of rules. It makes your life easier. Those set of rules make your life easier, and if you follow those rules, you will have time for everything. You will have more time, you will have more money, you will be more happy, you will be more successful if you follow the set of rules. So guys, I have seen in my life, whenever I compromise with my rules and regulations, I had to regret about that. जब भी मैंने अपने rules और regulations के साथ, अपने policies के साथ compromise किया, क्योंकि कुछ लोग आपको इसलिए, आपके रूल्स और रेगुलेशंस को कुछ लोग इसलिए क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ लोग आपके रूल्स और रेगुलेशंस को इसलिए क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि उनके लिए उन चीज़ों को फॉलो करना आसान नहीं है, वो नहीं चाहते आपके नियमों में बैठना. So if you don't want to fit in my rules and regulations, if you don't want to work according to my regulations, according to my policies, and if my policies are troublesome for you, अगर आपके लिए मेरी पॉलिसीज थोड़ी तकलीफदेह है, तो आई सजेस्ट यू कि आपको डिसिप्लिन रहने की आदत डालनी होगी. बिकॉज रूल्स और रेगुलेशंस के साथ कॉम्प्रोमाइज करना यानी कि अपने सक्सेस के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होता है. So I'm not going to compromise with it. I appreciate the suggestion of every single student, but if somebody tells me to compromise with my rules and regulations, I'm sorry guys, I'm never going to do that, because those rules and regulations make me whatever I am, and I'm very sure that these rules and regulations are beneficial. They're helpful for me as well as they're helpful for you. अपने रूल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज सिर्फ मैं तब ही कर पाऊंगा. मेरे रूल्स ऐसे होते हैं कि कोई भी स्टूडेंट लेट नहीं आना चाहिए, कोई भी स्टूडेंट एब्सेंट नहीं रहना चाहिए. कोई भी स्टूडेंट अगर एब्सेंट रहता है, वो मैं उसको अगले दिन बोलता हूँ कि क्यों एब्सेंट है, मैं उसको पूछता हूँ, सब लोगों के सामने मैं उसको पूछता हूँ, उसको बुरा लगता है, राइट. अनदर थिंग, जब कोई स्टूडेंट अपना होमवर्क नहीं करके आता है, मैं उसको बोलता हूँ क्यों नहीं किया. जब कोई स्टूडेंट कोई एक्शन नहीं लेता, मैंने बोला है करने के लिए, वो नहीं करता, फिर मैं उसको पॉइंट आउट करके सबके सामने बताता हूँ, राइट. जब कोई इंसान ऑनलाइन क्लासेस में वीडियो बंद रखता है, तब मैं उसको बोलता हूँ वीडियो शुरू रखिए. जब कोई मेरा स्टूडेंट जो कोई भी एक्शंस उनको लेने के लिए कही गई हो, वो चीज़ वो नहीं करता है, तो फिर मैं उनको बोलता हूँ. यही चीज़ें लोगों को खटकती है, यही चीज़ें कुछ लोगों को बुरी लग जाती है कि सर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, इतना ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए. तो ये चीज़ों के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ तब ही कर सकूँ. मैं ये चीज़ें करना तभी छोड़ दूंगा जब मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं आपकी केयर करना छोड़ दूँ.
अगर आप चाहते हो कि मैं डिसिप्लिन को छोड़ दूँ, रूल्स और रेगुलेशंस को छोड़ दूँ, ये तभी हो पाएगा जब मैं केयर करना ही छोड़ दूँ अपने स्टूडेंट्स के बारे में. So it's never going to happen because if I care about my students, I need to make them disciplined. Students, as a student, आपको discipline पसंद नहीं है, but as a teacher, I know the importance of discipline and I'm never going to compromise with that. ये चीज़ तभी हो पाएगी जब मैं केयर करना छोड़ दूँ अपने स्टूडेंट्स के बारे में कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम एब्सेंट रहिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा. अगर मैं ऐसा करता हूँ तो I know that it's your loss, so I'm never going to do that. So I hope you understand the importance of discipline. Thank you very much for watching this video. My name is Deepak Sharma, father of a cute little son, husband of a caring superwoman, lawyer turned English trainer, director of Inspire, the Institute of Youth Development, where I have helped more than 2,000 people from rural as well as urban areas aged 15 to 35 who were struggling because of their poor communication skills and poor English. Now they are moving steadily and firmly in their lives. Many of them are successful lawyers, doctors, teachers, engineers. Many of them are successful businessmen. So thank you very much for watching this video. I hope you liked it. For more videos like this, follow me on Instagram, subscribe my YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon. Thank you very much for watching. Bye for now. Have a nice day.